Good morning, class 6. Today we will read a new chapter, Grandpa Fights an Ostrich. What does the name tells? Name is telling that there is a fight between Grandpa and an ostrich. Okay, this story is written by Ruskin Bond. He's the writer. He's an Indian writer. Okay, he's well known for his stories about his childhood in Dehradun. Means उन्होंने बहुत सारी stories अपने childhood के बारे में लिखी है जब वो देहरादून में थे. His first novel, The Room on the Roof, was about a young Anglo-Indian boy named Rusty who lives in the Dehradun. Bond wrote this novel when he was 17 years old and it won the John Lelwyn Memorial Prize in 1957. He was awarded the Padma Shri in 1919 and Padma Bhushan in 2014. और एक चीज़ जो उनके बारे में बहुत फेमस है, he writes always the things which is very natural. Means he adopt the natural environment in his writing always, like animals, trees, environment, nature, all these things. And वो बहुत पॉपुलर थे. उन्होंने बहुत सारी ग्रैंड पाज स्टोरीज लिखी है. मीन्स अपने ग्रैंड पा के बारे में बहुत सारी स्टोरीज लिखी है उन्होंने. First of all, I'll show you the picture. Before starting this chapter, you must know that which kind of bird ostrich is. देखो इस तरह का bird होता है ostrich. Very powerful होता है, बहुत बड़ा होता है. और मेल जो ostrich होते हैं वो ज़्यादा harmful होते हैं in comparison of the female ostriches. Ostriches can, some facts you must be knowing about that ostriches are. Ostriches cannot fly, yes, though they are having the wings. उनके पास wings तो होते हैं, but because of their very heavy body they are not able to fly in the sky. They cannot run very fast, wrong. Their feet are so powerful that they can run very fast. Means in 2-3 steps they can cover 60 miles or something. Ostrich can kill someone or something by kicking them? Actually not. They can harm by kicking them, not kill. They live their own, not in the group. No, this statement is very incorrect. They always live in the groups, and their groups are known as the flocks. Flocks. Okay, their groups are known as the flocks. And ostriches eggs are the biggest eggs in the world. Yes, उनका egg जो होता है वो बहुत बड़ा egg होता है. चलो, बिफोर स्टार्टिंग द स्टोरी एक स्मॉल इंट्रोडक्शन दिया हुआ है 4 लाइन्स का, वो हम देख लेते हैं. माई ग्रैंडफादर वर्कड फॉर अ फ्यू ईयर्स इन द ईस्ट African Railway before he joined the Indian Railway. It was during that time that he had his now famous encounter with an ostrich. I had heard this tale many times during my childhood, and I gave it here in his own words or as well as I can remember them. मीन्स यहाँ पे रस्किन बॉन्ड एक इंट्रोडक्शन दे रहे हैं कि मेरे जो ग्रैंडफादर थे वो अफ्रीकन रेलवेज़ में ज्वाइन किया था उन्होंने इंडियन रेलवेज से पहले. तो अफ्रीका में ऑस्ट्रिचेस बहुत होते हैं. तो उनका एक एनकाउंटर मीन्स एक बोलते ना अनविलिंग मीटिंग जिसको हम चाहते नहीं हैं, जो एक्सीडेंटली मीटिंग होती है उसको बोलते हैं एनकाउंटर. ओके, आई हैड हर्ड दिस टेल. टेल का मीनिंग क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टेल? टेल होती हैं स्टोरीज. मेनी टाइम्स ड्यूरिंग माई चाइल्डहुड. अपनी चाइल्डहुड के टाइम पे, मतलब रस्किन बॉन्ड के चाइल्डहुड के टाइम पे हिज ग्रैंडफादर टोल्ड हिम अबाउट दीज स्टोरीज. आई गेव हियर हिज ओन वर्ड्स जितना मुझे याद है. Let us proceed. I had a miraculous escape from the death while I was working on the laying of new railway line in Africa. कि एक न्यू रेलवे लाइन थी अफ्रीका में, वहाँ पे मैं मेरे साथ एक आई हैड अ मिरेक्युलस एस्केप फ्रॉम डेथ. मैं बिल्कुल डेथ से बच के आया हुआ था. आई लिव्ड इन अ स्मॉल टाउन बट माई वर्क ले सम 12 miles away. I had to go to the work site and back on my horseback every day. One day my horse had a small accident, so I decided to do the journey on foot. I also knew a shortcut through the hills that would save me about 6 miles. ठीक है, ये समझ में आ गया होगा कि उनका वर्किंग प्लेस था वो 12 miles अवे था
और वो हमेशा हॉर्स पे जाते थे। लेकिन क्या हुआ कि एक बार हॉर्स का कुछ एक्सीडेंट हो गया तो उन्होंने डिसाइड किया कि मैं फुट पे ही चल के जाता हूँ, मतलब खुद ही जाता हूँ। और उन्होंने एक शॉर्टकट भी अडॉप्ट किया, रास्ता जो हिल्स में से जाता था, जो उनका 6 माइल्स बचा सकता था। दिस शॉर्टकट वेंट थ्रू एन ऑस्ट्रिच फार्म और कैंप एज इट वॉज कॉल्ड। आई वॉज फेयरली familiar with ostriches and knew that male birds very aggressive. I also knew that my dog scare away any bird that might try to attack me. Strange though it may seem, even the biggest ostrich, and some of them grew a height of 9 feet, will run faster than a race horse at the sight of even a small dog. So I felt quite safe. देखो अब इसमें क्या हो रहा है, पूरा इंट्रोडक्शन आ रहा है इस 4-5 लाइन्स में कि एक शॉर्टकट था, वहाँ से वो लोग जा रहे थे और उनको पता था इस शॉर्टकट में एक ऑस्ट्रिच एक बर्ड होता है, तो उनका एक फार्म था जिसको कैम्प क्या कहते थे वो लोग। आई वॉज फेयरली फैमिलियर विद, मैं ऑस्ट्रिचेस के बारे में बहुत सारी चीज़ें जानता था कि ऑस्ट्रिचेस बहुत पावरफुल होते हैं, और मुझे ये भी पता था कि मेल बर्ड्स होते हैं वो बहुत वायलेंट होते हैं, अग्रेसिव होते हैं। आई ऑल्सो न्यू दैट द डॉग वुड स्केयर अवे, और मुझे ये भी पता था कि कोई भी छोटा सा डॉग्स इन बर्ड्स को डरा सकता है, मतलब बहुत डरते हैं ये बर्ड्स डॉग्स की बाग से। कि 9 फीट का भी अगर ऑस्ट्रिच होगा तो लेकिन वो भी एक छोटे से डॉग की बाग से बहुत डर जाएगा। सो आई फेल्ट क्वाइट सेफ, क्योंकि मेरे पास भी एक डॉग था। ठीक है, देखो यहाँ से वो जा रहे हैं शॉर्टकट से, सीन दिस पिक्चर, और यहाँ पे बुशेस हैं, थॉर्नी बुशेस, और ये जो दिखाई दे रही है ये फेंस है। ठीक है, व्हेन आई अराइव्ड एट द कैंप आई क्लाइंब थ्रू अ वायर फेंसिंग कीपिंग अ गुड लुक आउट. I ran across the open space between the thorn bushes, and now and then I caught a glimpse of a bird feeding some distance away. Okay, caught a glimpse of. Glimpse of का मतलब मैंने थोड़े दूर से कुछ देखा. Glimpse यानी अचानक से सडन मेरा लुक गया, मैंने उनको देखा। तो क्या हो रहा है, उन्होंने जब कैंप की तरफ वो बढ़े तो उन्होंने वायर फेंसिंग को क्रॉस किया और फिर उन्होंने देखा कि कुछ जो ऑस्ट्रिचेस थे वो खाना खा रहे थे थोड़ी ही दूर पे। आई हैड गॉन अबाउट हाफ अ माइल फ्रॉम द फेंसिंग वेयर अ हेयर कैन अक्रॉस माई पाथ। बस मैं वो कैंप क्रॉस करने ही वाला था, हाफ माइल्स दूर था, कि तभी एक रैबिट ने मेरा पाथ क्रॉस किया। In an instant my dog began to chase it. Oh my god. तो क्या हुआ, वो तो चुपचाप जाने की कोशिश कर रहे थे, बट what had happened at that time कि एक रैबिट ने उनका पाथ क्रॉस किया, और डॉग ने जैसे ही रैबिट को देखा it began to bark. I tried calling him back though I knew it was hopeless. मैंने उसको बुलाने की कोशिश की पर मुझे पता था कि सब कुछ बेकार है। Chasing hares was the dog's passion. मीन्स उनकी बहुत बड़ी हॉबी होती है डॉग्स की, टू चेज द हेयर। चेज का मतलब क्या होता है, टू कैच, पकड़ना। ओके, आई डोंट नो वेदर इट वॉज द डॉग्स बार्क और माई ओन शाउटिंग, बट आई वॉन्टेड टू अवॉइड मोस्ट इमीडिएटली हैपन। द ऑस्ट्रिचेस वर स्टार्टलेड एंड बिगिन टू रनिंग टू एंड फ्रो। अब जैसे ही आवाज़ हुई, अब चाहे वो मेरी शाउटिंग की आवाज़ थी या डॉग की बार्क की आवाज़ थी, मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने फटाफट से वो जो चीज़ मैं अवॉइड करना चाहता था कि मेरा टक्कर नहीं हो, मैं उनसे नहीं मिलूँ, वही चीज़ हो गई। ऑस्ट्रिचेस बहुत स्टार्टलेड हो गए थे। स्टार्टलेड मीन्स अलर्ट हो गए थे, बहुत सरप्राइज हो गए थे, अलर्ट हो गए थे वो आवाज़ सुन करके। और टू एंड फ्रो लाइक वॉच का पेंडुलम देखा है आपने, जिनके घर में पेंडुलम्स वॉच होती हैं, वो टू एंड फ्रो यानी आगे जाना पीछे जाना, इन द सेम मैनर। तो वो ऐसे ही जा रहे थे, कभी आगे जा रहे थे, पीछे जा रहे थे, आगे। सडनली आई सॉ अ बिग मेल बर्ड अबाउट 100 yards अवे। मीन्स मैंने देखा कि बस 100 yards मतलब बहुत पास में था एक 9 feet का ऑस्ट्रिच मेरे सामने, और मेल था वो। And I told you in the starting of the chapter कि males ostriches are very aggressive. He stood still and stared at me for a few moments. Stared. What is the meaning of stared? घूरना मतलब when we are looking someone and pointed someone without moving our eyes, that is called stared. I stared back. मैंने भी देखा. Then lifted his short wings and holding his tail erect, he began running very fast forward towards me. Okay.
क्या हुआ फिर उन्होंने उसने अपने छोटे छोटे विंग्स को फ्लैपिंग करना चालू किया और अपनी टेल को इरेक्ट किया. मीन्स यू नो द फैक्ट दैट बर्ड्स कैन डिसाइड देयर बर्ड्स आर डिसाइडिंग देयर डायरेक्शन विद देयर टेल. तो उसने अपनी टेल को इरेक्ट किया, मतलब सीधा किया, एंड बिगेन रनिंग फास्ट फॉरवर्ड मी, और मेरी तरफ तेजी से भागा. I had nothing, not even a stake with which I defend myself. So I turned and ran towards the fence. But it was unequal race. When what were my steps of 2 or 3 feet against the creature's great strides of 16 or 20 feet. There was only one hope: to get behind a large bush and try to hide from the bird until हेल्प केम. देखो अब क्या हो रहा है. आई हैड नथिंग. मेरे पास उस टाइम उसका डॉग भी भाग गया था और उसके पास कुछ स्टिक विस्टिक भी नहीं था उस बर्ड को भगाने के लिए. तो उसको था कि मैं कैसे अपने आप को डिफेंड करूँ. डिफेंड का मतलब होता है बचाना. सो आई टर्न एंड रन टूवर्ड्स. मैं भागना चालू किया फेंस की तरफ. लेकिन वो एक अनइक्वल रेस थी, क्योंकि जो वो 9 फीट का बर्ड था वो इतना तेज भाग रहा था कि मेरे स्टेप्स, उसका एक स्टेप और मेरे 16 स्टेप्स के बराबर था. मीन्स वो एक अनइक्वल रेस थी और बहुत होपलेस हो चुका था मैं कि और फिर मैंने डिसाइड किया कि इंस्टीड ऑफ रनिंग और फाइटिंग विद द ह्यूज ऑस्ट्रिच, मैंने खुद को बुश के पीछे छुपाने का डिसीजन लिया. सो आई रश्ड फॉर द नियरेस्ट क्लम्प. क्लम्प क्या होता है? अ स्मॉल ग्रुप ऑफ ट्रीज एंड प्लांट. देखो इन दिस पिक्चर वो उसके पीछे छुपने की कोशिश कर रहा है. द थॉर्न बुशेज एंड वेटेड. द ग्रेट बर्ड वेस्टेड नो टाइम. ही वॉज इमीडिएटली अपॉन मी. लेकिन जो बर्ड होते हैं बहुत शार्प माइंडेड भी होते हैं, तो उन्होंने बिल्कुल भी उसने अपना टाइम वेस्ट नहीं किया और वो अपॉन मी का मतलब था बिल्कुल मेरे सामने खड़ा था. देन अ स्ट्रेट एनकाउंटर टुक प्लेस. फिर एक एनकाउंटर. एनकाउंटर का मतलब होता है लड़ाई होना. हाँ, strongest encounter took place. I dodged this way and that, taking great care not to get directly in front of the ostrich's deadly kick. Dozed. What is the meaning of dozed का देखो क्या मीनिंग होता है. अवॉइड करना someone or something to making a sudden quick movement this way, and taking a great care that care not to get directly in front. हाँ, मैं क्या बचने की कोशिश कर रहा था क्योंकि मुझे पता था I will not defeat that bird. I'm not able to fight with a 9 feet male ostrich which is very aggressive at all. So I had decided that I will not go in front of the ऑस्ट्रिच, क्योंकि अगर मैं उसके आगे जाऊंगा तो क्या होगा. ऑस्ट्रिच किक फॉरवर्ड एंड विथ सच ग्रेट फोर्स दैट इफ़ यू वर स्ट्रक द ह्यूज नेल्स विड कॉज यू डैमेज. कि वो इतना तेज से किक मारेगा कि जो उसके इतने पावरफुल फीट और नेल्स हैं वो आपको हार्म कर सकते हैं. सो आई वॉज अवॉइडेड टू गो इन फ्रंट ऑफ द ऑस्ट्रिच. ओके, मैं उसके पीछे से ही उससे लड़ने की कोशिश कर रहा था. इट वॉज ब्रीथलेस एंड रियली क्वाइट हेल्पलेस. बहुत डर गया था मैं. कॉलिंग वाइडली फॉर हेल्प एज आई circled for thorn bushes. How much longer could I keep going? I was ready to drop from exhaustion. मैं भाग भाग के इतना थक चुका था कि अब मेरे में बिल्कुल ताकत नहीं थी कि मैं उससे लड़ सकूं. As if it was what I was feeling, the furious bird suddenly charged straight at me. चार्ज का मतलब क्या होता है? रश्ड फॉरवर्ड टू अटैक. अब मैं जब थक चुका था तो वो बर्ड भी पहचान चुका था कि नाउ इट इज़ द गुड टाइम, इट्स अ परफेक्ट टाइम टू अटैक ऑन दिस ह्यूमन. तो वो जो बर्ड था मेरी तरफ बिल्कुल स्ट्रेट आ रहा था. समहाउ आई मैनेज टू स्टेप वन साइड. फिर मैंने एक स्टेप बैक लिया. आई डोंट नो हाउ, पता नहीं वो क्या था. आई फाउंड माई सेल्फ होल्डिंग वन ऑफ द क्रिएचर्स विंग. मैंने सडनली उसका क्रिएचर का एक विंग पकड़ लिया था और जैसे ही मैंने उसका विंग पकड़ा, इट वॉज नाउ ऑस्ट्रिच टर्न टू बी फ्राइटेंड. अब उसका टर्न हो गया था, मतलब विंग पकड़ने से अब ऑस्ट्रिच को समझ में आ चुका था कि दिस ह्यूमन इज वेरी गुड इन फाइटिंग और उसने मेरा विंग पकड़ लिया है. तो अब क्या हुआ? आई बिगेन टू टर्न, मूविंग राउंड एंड राउंड सो क्विकली. माई फीट वर soon swinging out from his body. All the while the ostrich kept opening and shutting his beak with loud snaps. जब मैंने बहुत तेजी से उसका विंग खींचा और उसको राउंड राउंड घुमाना चालू किया तो मैं भी उसके साथ हवा में घूम रहा था. लेकिन उसको इतना दर्द हो रहा था कि वो जोर जोर से अपनी बीक से लाउड स्नैप्स निकाल रहा था. स्नैप्स मीन्स साउंड ऑफ ऑस्ट्रिच.
Round and round we went in a great circle. It seemed as if that spiteful bird vow will never get tried. देखो क्या होता है spiteful का मतलब hurt someone because you are angry with them. And I knew that I could not hold much longer. Suddenly the ostrich went into the reverse. अब हम क्या थे जो गोल गोल घूम रहे थे एक डायरेक्शन में, तब तक तो ठीक था, लेकिन अब ऑस्ट्रिच ने अपने आप को रिवर्स डायरेक्शन में घुमाना चालू कर दिया. तो मेरी होल्ड जो थी, मैंने उसको उसके विंग्स को जो पकड़ रखा था, वो ग्रिप पूरी तरह से छूट चुकी थी और मैं नीचे गिर चुका था. I fell on the ground. I landed near the thorn bushes, and in an instant, before I even had a time to realize what had happened, the big bird was upon me. I thought the end had come. I raised my hand to protect my face, but the ostrich did not strike. देखो क्या हुआ कि मैं पूरी तरह से थॉर्नी बुशिस में गिर चुका था. जब उसने रिवर्स लेना चालू किया, मेरी ग्रिप छूट चुकी थी. और क्या रियलाइज़ किया मैंने कि मैं कुछ इससे पहले रियलाइज़ कर पाता, मैंने देखा कि वो बर्ड था, वो मेरे ऊपर ही था और वो मुझे पूरा तरह से रेडी था हार्म करने के लिए. पर मैंने सोचा कि मैं मेरे फेस को तो कवर कर लूँ. सो आई रेज्ड माई हैंड टू प्रोटेक्ट माई फेस. उन्होंने अपना फेस कवर किया, बट थोड़े मिनट्स होने के बाद में भी उस बर्ड ने कुछ स्ट्राइक नहीं किया, मतलब अटैक नहीं किया. वॉट हैड हैपन? आई मूव्ड माई हैंड्स फ्रॉम माई फेस. तब मैंने देखा, there stood a creature with one foot raised, ready to deliver a deadly kick. I couldn't move as I watched, frightened and fascinated also. The ostrich turned his head sharply to the left. A second later, he jumped back, turned and ran off as fast as he could dazed. I wondered what had happened to make him beat or retreat. क्या हुआ? देखो, देयर स्टूड अ क्रीचर. वहां पर एक क्रिएचर खड़ा था. वो मेरे से बस 1 फुट की दूरी पे था, रेडी था मुझे किक करने के लिए. मैं हिल भी नहीं सकता था. आई वॉच फ्राइटेड एंड फैसिनेटेड. मैं पूरी तरह से डरा हुआ था, प्लस मैं वंडर्ड भी था, फैसिनेटेड भी था कि वो मुझे हर्ट क्यों नहीं कर रहा है, वो इतना वेट क्यों कर रहा है. और सेकंड लेटर, मतलब बस जस्ट मैंने ये सब चीज़ें देखी और मैंने देखा कि उसने अपना नेक लेफ्ट की तरफ घुमाया, एक स्टेप बैक लिया और भाग गया वहाँ से. डेज्ड, आई वंडर्ड. मैं पूरी तरह से वंडर्ड था कि हुआ क्या आखिर. बीट अ रिट्रीट. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बीट? गो अवे फ्रॉम अ प्लेस टू एस्केप फ्रॉम फाइटिंग और डेंजर. मतलब उसको ऐसा लग रहा था कुछ खतरा है और उससे वो वहाँ से इस मोमेंट्स इतनी तेज तरीके से भागा वो वहाँ से. आई सून फाउंड आउट क्या हुआ था. अब तुम्हें पता चल गया होगा. टू माई ग्रेट जॉय आई हर्ड द बार्क ऑफ माई डॉग. मेरा डॉग आ चुका था और वो पूरी तरह से उसको भगा रहा था अपनी बाक से. द नेक्स्ट मोमेंट ही वॉज जंपिंग अराउंड एंड लिकिंग मी. और वो डॉग मेरे ऊपर था और मुझे लिकिंग कर रहा था, वेदर आई गॉट एनी हार्म और नॉट. नीडलेस टू से आई रिटर्न हिज kisses मोस्ट अफेक्शनेटली. kisses यानी होता है टच विद लव एंड अफेक्शन, कि वो जिस तरह से मुझे अफेक्शन से टच कर रहा था कि वेदर आई गॉट एनी हार्म और अदर वाउंड ऑन माई बॉडी, तो वो चीज़ जो थी वो मुझे बहुत टच कर गई. एंड आई टुक गुड केयर ऑफ सी दैट ही डिड नॉट लीव माई साइड अंटिल वी हैड लेफ्ट दैट ऑस्ट्रिच कैंप. और तब तक मैंने उसको छोड़ा ही नहीं, मेरे डॉग को. मैं बहुत उसको होल्ड करके रखा मेरे डॉग को, जब तक कि हमने वो पूरा कैंप पार नहीं कर लिया. सो इट वॉज द स्टोरी, वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी बाय रस्किन बॉन्ड, ग्रैंडपा फाइट्स एन ऑस्ट्रिच. बहुत अच्छी स्टोरी थी. हम लोगों ने देखा किस तरह से हमने ग्रैंडपा ने ऑस्ट्रिच से फाइट किया था. और व्हाट इज योर होमवर्क नाउ? जस्ट राइट द हार्ड वर्ड्स इन योर नोटबुक एंड just read this chapter once again. Okay, goodbye. Thank you.